What's up everyone, Profil here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Sunday, 26th of July, and the previous trading session was on Friday. And on Thursday, on the day of Sensex expiry, the markets closed almost near their day's low. So it was of very high probability that Friday the markets are going to open with a gap down. And when the markets opened, it was a massive 200-point gap down. But within the first 5 minutes, there was a 100-point recovery because probably the shorts kind of started booking their profits. But after that, the markets went on to test the day's low again, and even it made a low of 23,600. Now, mind you, this 23,600 is the gap that was created around 2 months ago. Now, once this gap was filled, there was a sudden demand and the market saw a sudden surge of 200 points coming all the way back to 23,800. Now, when the markets had made this 23,600 low, India VIX had surged almost 10%, reaching almost 15. But once the market started recovering from the lows, the India VIX also cooled off. But nonetheless, India VIX was up 4% from the Thursday's close, and India VIX now again starts trading above 14 levels. Now, there has been a massive crush in the weekly options. जो 250 rupees पे straddle close हुआ था on Thursday, that went up to 217, the downfall. But as the market started to recover back to 23,800 levels, there was a decent 50-point crush in the weekly straddles, and the straddle closed at somewhere around 220. Now, on the crude front, the crude dropped by almost 4 to 5% because there was a news in the market that a new round of talks are about to happen between the US and Iran. So probably the traders thought of booking some profits. So there was a profit booking in crude, and crude was down 4%. Now, whether the talks are going to happen and whether some sort of negotiations are going to start again, we don't know. But next week is very important because it has a monthly expiry, and that will lead to a lot of volatility, especially when Nifty is trading at such low premiums. So tomorrow is Monday, and most probably markets are going to open flattish to slightly in green depending upon what the global indices and what GIFT Nifty is indicating. But we'll plan for all the three scenarios considering the kind of global scenario we are in. Let's get to terminal. So the gap I was talking about is this gap, जो 2 महीने पहले बना था, एंड मार्केट्स ने इस रेंज को तोड़ने के लिए मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, अनसक्सेसफुल हुआ था. बट ऑन फ्राइडे दिस लो वाज ब्रीच्ड, द गैप वाज फिल्ड, एंड द मोमेंट द गैप गॉट फिल्ड, the market surged back by almost 200 points. So one thing is for sure that this low will be kind of a local minima going ahead. At least monthly expiry होने तक, अगले सीरीज स्टार्ट होने से पहले ये जो लो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए until unless we get some really bad news from the global front. Also global front से भी आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल almost 5% क्रश हो चुका है. I mean of course weekly candle is still a solid green candle, but traders ने यहाँ पे profit book किया है ahead of that news saying that there might be a second round of talks between the US and Iran. I mean, at this point, only God and Trump knows what's the future course of action. And it is not in our interest also to, speculate what's going to happen there. Let's just follow the price. अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो द फ्राइडेज प्राइस एक्शन वाज एन एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ थर्सडेज प्राइस एक्शन. आप देख सकते हैं कि थर्सडेज प्राइस एक्शन लुक लाइक दिस, फ्राइडेज प्राइस एक्शन लुक लाइक दिस. सो गोइंग बाय वेयर द मार्केट्स हैव क्लोज्ड एंड गोइंग बाय हाउ स्ट्रॉन्ग द मार्केट्स हेल्ड इवन पोस्ट 1 o'clock, तो ideally the market should ideally open flat or a bit of a gap up. Now अगर gap down खुलता है तो again markets के लिए surprise हो जाता है, and then expect some amount of extra volatility. As in the week is of a monthly expiry, and generally monthly expiry का जो हफ्ता होता है वो quite volatile होता है normal week से comparison में. And considering the premiums and considering where the markets are, expect some amount of volatility. And अगर market एक sharp pullback 24,000 के ऊपर भी देता है तो I'll not be surprised. But for some time I would consider this as a good demand zone. तो जब भी market यहाँ पे आता है तो we can plan mean reversion trades. More on it later. But अगर straddle की बात करें तो the straddle has closed somewhere around 230. तो most probably 180, 190 के आसपास Monday open होगा, which gives us a potential of 40 points of crush. But again, अगर आप सुबह ही positions बना के बैठोगे तो all your theta decay or whatever the wall crush that the market gives you will go into just delta hedging your positions, because markets move तो definitely करने वाला है, and इतना move करेगा जितना straddle प्राइस कर रहा है उससे तो ज़्यादा ही मूव करने वाला है.
because we are consistently in a negative VRP regime. Negative VRP regime मतलब क्या है? The IVs are lower than the RVs. मतलब प्रीमियम्स जो इंप्लाई कर रहा है मूव्स, वो जितना मार्केट मूव कर रहा है उससे कम है. मतलब मार्केट हमेशा जितना स्ट्रैडल प्राइस है उससे ज़्यादा ही मूव कर रहा है ऑन मेजॉरिटी ऑफ द डेज. तो गोइंग इन टू द मंथली एक्सपायरी वन शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, स्पेशली इफ समबडी इज ट्रेडिंग शॉर्ट वॉल और शॉर्ट गामा. मतलब अगर कोई ऑप्शन सेलर हो, थोड़ा बच के रहना चाहिए, बिकॉज 80% of the time monthly expiries have been deadly for the short gamma and short vol players. ठीक है, तो जनरली प्राइस एक्शन ट्रेड्स ही हमको करना पड़ेगा. एंड कल के लिए जो बेस्ट सिनेरियो रहेगा डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए वो ये रहेगा कि मार्केट्स फ्लैट खुले. अगर मार्केट्स गैप के थ्रू, अगर मार्केट्स कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर देता है तो देन इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगा. देन विल हैव टू लुक फॉर मीन रिवर्शन ट्रेड्स. ठीक है, मान लो अगर मार्केट 100 पॉइंट्स या 80 to 90 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल जाता है तो देन हम कॉन्फिडेंस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड भी नहीं ले सकते, कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट ट्रेड भी नहीं ले सकते. तो हम लोग एक बीच में फंस जाते हैं. तो देन वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट्स टू मूव टू द एक्सट्रीम्स एंड देन प्लान द मीन रिवर्शंस. बट अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तो देन हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो मिल जाता है. आप देख सकते हैं कि लाइक दिस इज अ 50 पॉइंट रेंज. तो अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो वी कैन एक्चुअली कॉन्फिडेंटली ट्रेड द ब्रेकआउट विद द लो ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस. एंड अगर मार्केट ब्रेकडाउन भी देगा देन ऑल्सो वी कैन कॉन्फिडेंटली ट्रेड द ब्रेकडाउन एज वेल. तो अगर हमारा एक बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहता है. कम से कम 1:2 to 1:3 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है. तो द आइडियल सिनेरियो इज मार्केट ओपन्स विद इन दिस कंसोलिडेशन रेंज ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ फ्राइडेज प्राइस एक्शन. तो यहाँ पे वील ट्रेड द ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन. बट येस, यहाँ पे एक चांस है कि मार्केट फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने के लिए आएगा एंड देन डे स्लो के आसपास आएगा एंड देन फिर से जाएगा. तो यहाँ पे अगर एक बार आपका स्टॉप लॉस भी जाता है तो देन विल टेक वन री एंट्री एज वेल. सो टोटल यहाँ पे 2 बार हम लोग कोशिश करेंगे इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैप्चर करने के लिए. नव अगर मार्केट्स गैप डाउन खुल जाता है, विच इज अ सरप्राइज सिनेरियो बिकॉज द वे द मार्केट्स हैव क्लोज्ड, द वे द क्रूड ऑयल इज बिहेविंग एंड द वे द गिफ्ट निफ्टी इज इंडिकेटिंग एंड द काइंड ऑफ न्यूज दैट आर फ्लोटिंग अराउंड इन द मार्केट्स, मोस्ट प्रॉब्ली एक सरप्राइज गैप डाउन नहीं होना चाहिए. बट अगर हो जाता है तो देन we'll only trade the long trade that especially around these levels. So 23,600 के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे. we'll not try to short the markets here. यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस ज़्यादा है. बिकॉज यहाँ पे जो गैप डाउन है वो प्राइस भी नहीं है. तो अगर गैप डाउन है तो मोस्टली इट इज़ टू शेक आउट दीज वीक लॉन्ग्स एंड इन वीक लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस लेके मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग रैली काइंड ऑफ दे सकता है. बिकॉज देयर इज इट अगेन a possibility that a monthly expiry is gonna happen somewhere around 24,000 levels. मतलब there are a lot of algorithms and a lot of statisticians they have come into the markets and वो लोग बोलते हैं कि हाँ कंटिन्यूसली 3-4 महीने से या 3-4 हफ्ते से 5-6 हफ्ते से 24,000 के आसपास ही एक्सपायरी हो रहा है. तो इस बार मार्केट ड्रिफ्ट करेगा, इस बार मार्केट ड्रिफ्ट करेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल द गैम्बलर्स फैलेसी. बट हो सकता है कि मार्केट्स फिर से 24,000 के आसपास ही आके मंथली एक्सपायरी दे. देन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बेटिंग ऑन दैट गैम्बलर्स फैलेसी दे गोना लूज बिग टाइम. तो दैट इज़ वाई तो आई विल नॉट शॉर्ट द मार्केट्स हियर. अगर मार्केट्स यहाँ से नीचे आएगा आने दो, बट आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस डाउन मूव पर्टिकुलरली. बट डेफिनेटली अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आई विल एक्सपेक्ट अ बाउंस फ्रॉम दिस लेवल. तो अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो आई वुड फॉर्म माई लॉन्ग पोजिशंस अराउंड दिस लेवल विथ प्रॉब्ली 30 to 40 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस. उतना ही चाहिए बिकॉज वंस द मार्केट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन हियर प्रॉबली द सेलिंग माइट इंटेंसिफाई. ठीक है, नाउ द थर्ड सिनेरियो गैप अप सिनेरियो. अगर इस रेंज से बाहर गैप अप अगर खुल जाता है, लाइक यहाँ पे 23,900 के आसपास अगर खुल जाता है तो देन विल टेक मीन रिवर्शन ट्रेड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स. ठीक है, तो 24,000 लेवल ऑलरेडी एक सप्लाई जोन जैसे ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है. तो मार्केट्स लेट द मार्केट्स कम टू 24,000 लेवल्स एंड 24,000 लेवल के आसपास हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड ले सकते हैं. और लेट द मार्केट्स कम टू 23,800 लेवल्स. तो यहाँ से भी हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड ले सकते हैं. बट अगेन whenever the mean reversion
होना चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा पैटर्न को देख के हम लोग ट्रेड लेंगे, डायरेक्टली हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे. लेट्स वेट फॉर अ पैटर्न, मतलब एक डबल टॉप या डबल बॉटम काइंड ऑफ अ पैटर्न 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बनने दो, या एक 3 मिनट कैंडल पे एक एनगल्फिंग कैंडल, मतलब अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो एक ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल, या बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो एक रेड एनगल्फिंग कैंडल बनने दो. इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे, सिर्फ लेवल्स के बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे. द रीजन इज यस, लेवल्स के बाद मार्केट्स मतलब लेवल्स को टच करके ही वापस बाउंस भी कर सकता है, बट गिवन द फैक्ट दैट इट्स अ मंथली एक्सपायरी, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैपिंग्स का सिनेरियो ज्यादा मेरे को लग रहा है. दैट इज वाई आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव दैट व्हाट आई वुड डू. ठीक है, कल के लिए मैं थोड़ा पैटर्न देखने के बाद मैं करूंगा. येस, दैट वुड काइंड ऑफ स्क्यू माई रिस्क रिवॉर्ड अगेंस्ट मी, बट दैट्स कंप्लीटली ओके. एंड अगर मुझे 1:1 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड भी मिलता है तो देन ऑल्सो आई एम ओके. एंड अगर गलती से 12 o'clock के बाद देर इज अ स्पाइक इन स्ट्रैडल, अगर स्ट्रैडल में अगर स्पाइक देखने को मिलता है, लेट्स से 12 o'clock के आसपास 160 रुपीज़ के आसपास स्ट्रैडल ट्रेड कर रहा है, एंड अराउंड 12 o'clock और 12:30 लेट्स से देर इज अ शार्प अप मूव और अ डाउन मूव विच स्पाइक्स दिस स्ट्रैडल टू 175 or so, then probably I'll take a short wall trade. When I say short wall trade, I'll either short a straddle or a close to money strangle to actually capture this whatever the crush that I'm going to get in the last couple of hours. ठीक है, तब तक मैं जनरली ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई गेट एनी डायरेक्शनल ट्रेड्स. ठीक है, शॉर्ट वॉल ट्रेड तब भी लेना है इफ यू गेट 180 और अबव प्रीमियम आफ्टर 11 o'clock. 11 o'clock के बाद अगर हमको 180 रुपीज़ के आसपास कुछ स्ट्रैडल का प्रीमियम मिलता है, ओनली देन वी शुड बी टेकिंग अ शॉर्ट वॉल ट्रेड, दैट इज शॉर्ट स्ट्रैडल से शॉर्ट स्ट्रैंगल्स हम बना सकते हैं, वरना हम जाने देंगे बिकॉज दिस इज अ वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी. आई एम रीआइट्रेटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ रिडंडेंसी. ठीक है, तो yes, I'll see you guys on Monday after the markets close. Till then, take care, bye bye, have a great weekend. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.